So in next, we're gonna start interconversion of physical state. On the basis of physical classification, we have divided the states of matter into three states. Yes or no? Like we have solid, liquid, and gas. So for solid, the detailed study will be in class 12 as a chapter named solid state, and the liquid state is available in physics, fluid dynamics in class 11 part 2. As in 11th physics, we have two physics books, part 1, part 2. So in part 2, you will get there. And another liquid portion that in the form of solution, it is given in class 12 as a second chapter. After solidity, it is given as solution as a second chapter, and third one, and rest is the other chapters. What about gases? So gases are given in class 11, part 1 chemistry, that in the name of gaseous state, where there are detailed study of gaseous states are done. Is it clear for now? So it is the process where we convert different forms of matter, like solid to gas, gas to solid, liquid to gas. इस तरीके से we convert there is the states are changing from one form to another form. मीन्स कभी लिक्विड से वेपर हो रहा है, तो वेपर से कभी क्या हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, या सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर हो रहा है, या डायरेक्टली क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपराइज हो रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सॉलिड डायरेक्ट वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं, कुछ परफ्यूम टाइप का आता है। एक तो परफ्यूम लिक्विड फॉर्म में आता है ना, दैट वी कॉल एज ईथर, तो कुछ सॉलिड फॉर्म में आता है। तो डायरेक्ट अपने बॉडी में जब आप कहीं पे इसको यूज करोगे, आफ्टर यूजिंग आफ्टर रबिंग, वो अपने आप इवापोरेट हो जाती है। तो आप उसको स्मेल कर जब करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, मतलब कुछ टाइम तो अपने आप खत्म होता है। रबिंग के बाद उसकी अपीयरेंस खत्म हो जाती है, मीन्स वो डिसअपियर हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से भी होता है। इसमें पहला पॉइंट लिखेगा, मीन्स इसका डेफिनेशन टाइप में, बेसिकली द प्रोसेस or we can say phenomena of changing matter from one form to another form. Are you able to understand? One form to other form. Here form means the state they are existing. Yes or no? The state in which they are existing. This is considered as form of matter or states of matter. And they can back, ऐसा next one लिखे, and can be, and also लिखे, reverts back to original state. और we can say original form. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स बोलते हैं। Is it clear to everyone? Like we have solid, so we can convert solid into liquid, liquid into solid. Yes or no? In liquid we can convert liquid into gas and gas into solid, but further it can convert into liquid into solid. Are you able to understand? Next point डाल के लिखिएगा, this phenomena, or we can say this can be done by the help of, or we can say by changing temperature, pressure, or whatever the other process, or we can say anything. By applying these things, we can change the forms of state from one state to another state.
Is it clear to everyone? Hello? Yes, sir. Yes, By sir. altering their condition, and that condition may be temperature, pressure. Clear? अरे बोलो. हाँ. Should I move to next? No, sir. हाँ सर. मैं लिखा. Fatafat. For example, we can consider as we have a container. You can write, and in writing, during the course of writing, you can listen to me. If in a container there is water, if you heat that container, means by giving temperature you are providing heat. आप temperature को घटा बढ़ा कर सकते हो. How you can increase or decrease temperature? Anyone? By giving heat. By giving heat, and heat can be given in the form of, we have different source. Are you able to understand? तो हीट से क्या होता है, हीट के फीलिंग्स पे हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं. बस समझ में आ रही है? अगर हीट कम है या नहीं है तो आपको ठंडा लगेगा, हीट ज्यादा है तो आपको गर्मी लगेगी. बस समझ में आ रही है? वो फीलिंग है ना, वही तो टेम्परेचर है. टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस. नो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इसी को तो बोलते हैं टेम्परेचर. इट मे बी इन डिफरेंट स्केल. वी हैव सेल्सियस, वी हैव फ़ारेनहाइट, वी हैव Kelvin. And Kelvin is the SI unit. Are you able to understand? Kelvin Yes, is the sir. SI unit. We have 7 basic standard units. SI unit का मतलब क्या होता है? International Unit of System. Is it clear? हाँ सर. इंटरनेशनल यूनिट ऑफ, आप यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हो. SI का फुल फॉर्म क्या होता है? SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम. लिख लो एक पॉइंट बना के. मूविंग टू नेक्स्ट. हाँ, एक एग्जांपल के तौर पे मैं क्या ले रहा हूँ, एक कंटेनर ले रहा हूँ. ठीक है. मान लो उसके अंदर क्या है, आइस है, और यहाँ से क्या है, बर्नर है. किसी का बर्नर वाला डाउट था, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा. ठीक है. बर्नर क्या है? एक हीट प्रोवाइडिंग डिवाइस है. एक उससे क्या होता है, बंसन बर्नर. तो बंसन एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके बेस पे दिया गया है. दैट इज द बंसन बर्नर जो हम लैब में यूज करते हैं. दैट इज द बंसन बर्नर. और बर्नर एक कॉमन टर्म है व्हेन वी कैन यूज. स्टोव का बर्नर होता है, गैस का बर्नर होता है, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं. जब हम हीट करेंगे तो आइस फील्डमेंट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड से कन्वर्ट होगा लिक्विड में. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? फर्दर वी कैन, फर्दर ऑन हीटिंग इट विल कन्वर्ट इनटू गैस. फिर इवापोरेट होके वो निकल जाएगा. क्लियर? अरे हाँ कि ना. तो हम हीट देते जाएंगे और इस तरीके से आपको फिनोमेना दिखता जाएगा. वहीं पर मान लो एक कंटेनर है जिसमें क्या है, गैस है. क्या है? गैस. अरे बोलो क्या भाई, क्या है? गैस है. गैस में ना एक ढक्कन लगा हुआ है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन. हैव यू हर्ड दिस टर्म, पिस्टन? जिसमें वॉल्यूम और एक्सपेंशन वाला वर्क होता है, वॉल्यूम प्रेशर वर्क होता है. whenever you will apply pressure on this, the gas will be compressed and compressed. Finally it will be formed in the droplet form. Are you able to understand? जैसे ही आप ये प्रेशर हटा दोगे या कम कर दोगे, गैस एक्सपेंड करेगा, तो फिर गैसेस फॉर्म आ जाएगा. गैसेस को, पार्टिकल्स को पास करोगे. हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे, किस तरीके से डिफाइन किया है? एज वी नो, इन स्टेट्स ऑफ मैटर
द इंटरमोलिकुलर फोर्स और वी कैन से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का तो बहुत बड़ा डिफरेंस होती है। सॉलिड में ये बहुत ज्यादा होता है क्या? हेलो गाइस। नहीं सर, सबसे ज्यादा गैस में होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है। नहीं, मैंने जो बोला वो सही है गलत है? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। नहीं सर, गलत है। सर बहुत कम होता है। सर बहुत कम कम होता है। होता है। फिर उससे 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 से ज्यादा कितना होता है? लिक्विड। लिक्विड का Liquids. आता है, उससे फिर ज्यादा गैस। कितना Solids होता का है? होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? Gases. गैस में। और इतना दूर होता है, दे आर टू मच फार अवे, इतना फार अवे कि वो तुमसे दूर रही हो, कभी किसी भी जन्म में मिलना मत। हाँ, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, पिस्टन को फोर्स लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वो उसको तो आना ही पड़ेगा। तुम क्या, तुम्हारा पूरा जो भी आजू बाजू में सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो ऑन अप्लाइंग प्रेशर वी कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ पर गैस इनटू लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है। हेलो गाइस, गैस इनटू Yes, sir. लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है। इसके लिए हमने, अच्छा, जब आप आगे जाओगे तो क्लास 12 में जब आप सॉल्यूशन पढ़ोगे तो वहां पर जो आप, नहीं सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्म का मतलब इज अ टर्म यूज फॉर हीट, डायनेमिक मींस मूवमेंट। जहां पर आप हीट के फ्लो के बारे में पढ़ोगे केमिस्ट्री में, दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है? तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि आप टेम्परेचर को कैसे कम कर सकते हो। अगर टेम्परेचर बढ़ाना तो हीट देना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना तो हीट निकालना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि उसको कंप्रेस करो तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि उसको एक्सपेंड करो तो प्रेशर जो ऊपर से ऑलरेडी जो वेट सिस्टम के ऊपर रखा हुआ है, जो आपने प्रेशर लगा रखा है, यू हैव टू डिक्रीज इट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हेलो। हाँ, मान लो Yes. ये क्या है, मान लो क्या है, ये वाटर है। ठीक है? अब फर्दर हम चाहते हैं कि इसको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रीजिंग जोन प्रयोग करेंगे, तो solid में convert हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर आ गई तो फटाफट इस डायग्राम को बना लो, फटाफट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से हम स्टेट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। प्रेशर को घटाया बढ़ा करके हम स्टेट्स ऑफ मैटर या फॉर्म्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डू इट फास्ट। अगर सॉलिड मेल्ट होगा उसके लिए देयर विल बी सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट, और हर सब्सटेंस की अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होती है। जैसे अनुचरी का अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, हर्षवर्धन का अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, अर्णव पिंपले का अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, स्वरा का अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, आकाश का भी अलग होगा, ओम काकरे का भी अलग होगा, और सानवी कथी का भी, काथी बोले या लाठी बोले, सब किसी का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। सुरेश का भी, सिद्धेश का भी, स्नेहा, जानवी और मानवी, सब किसी का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ मतलब क्या है? बियरिंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू हैंडल द टफ और डिफिकल्ट सिचुएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओम काकड़े, वेयर आर यू? Yes, sir. स्विच टू कैमरा मोड। Yes, sir. 2 minutes. डन। हाँ सर, हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट। तो ऑन सर ऑन हाँ सर, सर आपकी आवाज कम आ रही है, आप माइक थोड़ा पास में ले सकते हैं? माइक पास में लाऊं? हाँ सर, आवाज कम आ रही है। इससे पास क्या होगा बेटा? पास में ही है। ओके सर। इसलिए मुझे ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा। I have to keep my mic like this। तो मैं लिखूं कैसे? अब तक की जब मैं साउंड डालेंगे that will be fine। ओके, हाँ। तो ऑन altering T and P, T stands for
टेम्परेचर एंड पी स्टैंड फॉर पार्टनर नहीं प्रेशर। हाँ या ना? तो मैंने कभी पहले बताया था एसटीपी एंड एनटीपी के बारे में। सो वी हैव एनटीपी एंड एसटीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी एनटीपी? एनीवन? So STP stands for standard temperature and pressure, and NTP stands for normal temperature and pressure. क्या ये सबको आता है? हाँ सर। नहीं आता है तो लिख लो, नहीं आता तो लिख लो। डू इट फास्ट। एसटीपी एंड एनटीपी। बताओ सनिया क्या होता है? STP, the full form of STP is standard temperature and pressure। दोनों में जो प्रेशर अप्रोक्स सेम होती है, बस टेम्परेचर का जो फर्क होती है वो 0.15 की होती है। जिसे आप आगे बढ़ेंगे आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताई जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल STP का फुल फॉर्म लिखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। NTP का लिखिए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। Before to proceeding to next, I am asking a question. In summer season, the tires of a cycle or bicycle, they generally burst out. If you have too much, pressure inside the tire Q, then the tire bursts. Why? सर समर में हीट ज्यादा होता है, तो हीट एनर्जी एयर जो ट्यूब के अंदर जो एयर है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उससे गैस जो है अंदर एक्सपैंड हो जाती है, तो उससे वो फिर जो ट्यूब है वो रेजिस्ट नहीं कर पाता, बर्स्ट हो जाता है। What about other? Anyone will explain? और एक बार क्वेश्चन बता सकते हो? During summer season, the tire bursts. Why? Actually, tire burst नहीं करता, वो ट्यूब burst। Actually, वो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है ऑलरेडी। टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो उसको सर energy टेम्परेचर बढ़ेगी। बढ़ जाता है इसलिए पार्टिकल्स एनर्जी गेन करना शुरू करते हैं और एनर्जी बढ़ेगी एक्सपैंड। तो एनर्जी बढ़ेगी तो गैस एक्सपेंशन होगा, गैस एक्सपेंशन होगा। As you know, gas exert pressure on their walls in which they are present. Are you able to understand? जिस कंटेनर पर रहता है उसके वाल से गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है, yes or no? करता है कि हाँ कि ना? जब प्रेशर एक्सर्ट उसके पास देयर इज सर्टेन लिमिट कि उसके बाद वो गैस के प्रेशर को बियर नहीं कर पाएगा। जब बियर नहीं कर पाएगा देन व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली निकलने का एक ही तरीका, अगर कोई सर्टेन लीकेज भी हो, नहीं भी हो तो भी फट जाएगा, तो उसके पास सर्टेन लिमिट तक ही पॉसिबिलिटी है बियरिंग कैपेसिटी, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी। Also you all guys have only limited capacity, limited ability to handle pressure। पढ़ाई का प्रेशर क्या तेरा ना बौखला जाते हैं, हॉपलेस। क्या करूं? What should I do? Yes? हाँ। तो ऑन एंड अल्टरिंग टेम्परेचर, पहला बात करेंगे हम लोग टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर चेंज करने से किस तरीके से होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो इफ वी चेंज टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग अलग देख रहे हैं और प्रेशर को हम लोग अलग देख रहे हैं। तो इफ वी अप्लाई टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन? सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। अरे बोलो ना, क्या बोलते हैं इसको? इसको आपको हीट करना पड़ेगा। When solid is heated, हीट करने पर क्या होगा? ये मेल्ट होगा, मेल्ट से क्या बनेगा? लिक्विड बन जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से जब आप इसको लिक्विड को हीट करोगे तो लिक्विड हीट होने क्या हो जाएगा? इवापोरेशन होगा। यस और नो? अबव द एयर, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट आएगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
तो इवापोरेशन। अरे कौन सा पोरेशन? इवापोरेशन। तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यस और नो? हेलो। सिमिलरली वी कैन से, इसको हम रिवर्स बैक भी कर सकते हैं। व्हेन गैस इज बीइंग कूल्ड इट विल कन्वर्ट इन लिक्विड। सबसे सिंपल सा एग्जांपल, ड्यूरिंग कुकिंग or in a pot, in a container there is water and you are heating that water, so water vapors will, first of all water liquid will evaporate, तो evaporate आएगा तो कंटेनर के ढक्कन में लगेगा। तो शुरू में तो आपको दिखेगा नहीं, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम आपको उस ढक्कन में क्या दिखेगा? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखेगा। ऐसा क्यों? कंडेंसेशन। टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन हो जाएगा, मतलब गैस ऑन कूलिंग कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड ऑन कूलिंग और फ्रीजिंग इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक सिंपल सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक बोतल है, आपने फ्रिज में रख रखा है, या देयर इज ग्लास ऑफ वाटर, उसमें आपने बिल्कुल कूल्ड चिल्ड वाटर रखा है। आप उस पर ध्यान पे देखेंगे ना तो उनके सराउंडिंग में वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं। व्हाई? फॉर एग्जाम्पल ये चिल्ड पानी है, क्या है? वैसे है नहीं, क्या ये चिल्ड है। मैं किसी ग्लास पे डालता हूँ या इसी बोतल के सराउंडिंग में बहुत सारे एयर बोलता हूँ, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो रहा है। ऐसा कैसे? सर ठंडा है तो जो वाटर वेपर्स रहता है वो कंडेंसेट होता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सर वो जब वाटर वेपर्स कंडेंसेशन होता है। नहीं, क्यों? सर जब वो बॉटल के सरफेस को एयर छूता है तो वो अपना टेम्परेचर लूज कर देते हैं, तो फिर वो लिक्विड पे आ जाता है, लिक्विड स्टेट में। बेसिक मेन पॉइंट था बोतल का टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि जो आपका बोतल का पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, और जो एटमॉस्फेरिक जो वेपर का जो टेम्परेचर है वो कुछ अलग है। तो जहां जहां देखो, जब जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जब जब प्रेशर डिफरेंस होगा, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगी। देखो एयर का मतलब प्रेशर का डिफरेंस होगा तो एयर का फ्लो होगा, एयर का फ्लो का हम लोग क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? वैसे टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस आपको एहसास होगा। जो आपको ठंडी लगती है, फॉर एग्जाम्पल कोई हॉट यूटेंसिल है, क्या है? कोई हॉट यूटेंसिल है, आप चाहते हो कि वो बर्तन आपको गर्म ना लगे, अब आप अपने हाथ को भी उतने सेम टेम्परेचर पे गर्म कर लो, तो दोनों जब टच करो आपको गर्म नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? You will not feel any kind of injury or the hotness or the coolness. Getting my point? ये होता है जब जब when there is temperature difference, you will feel some difference in whatever the situation. बात समझ में आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, इसमें लोग बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आइस है, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बताइए? अरे बोलो। 0 डिग्री। हाँ, आइस होता प्योर है आइस का है वो। 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या बात करते हैं? आइस एक मतलब आइस का जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। हाँ, इसके अंदर आप कोई इम्प्योरिटीज मिलाओगे, लाइक सॉल्ट मिलाओगे, तो टेम्परेचर घट जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा। मैं इसका आपको यूज बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, अरे सर जो ऑयल्स वगैरह या फिर जो व्हीकल्स वगैरह कोल्ड एरियाज में यूज होता है, जो व्हीकल्स कोल्ड एरियाज में यूज होता है, उसका भी तो ऑयल फ्रीज कर जाना चाहिए। अरे हाँ कि ना? कर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? या जो उसके इंजन को ठंडा करने के लिए अंदर एक पानी का वो होता है ना, कंपार्टमेंट होता है। यस और नो? आर यू अवेयर ऑफ दैट? यस। क्या वो पानी जमता है? नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? क्योंकि उसके अंदर हम ना कुछ सॉल्यूट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाते हैं, कुछ सॉल्यूट्स मिलाते हैं। उसको मिलाने से क्या होता है ना, कुछ इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, और उन मिक्सिंग कुछ सॉल्ट टाइप का इम्प्योरिटी होता है। सॉल्ट मिलाने से क्या होता है ना, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है कम कर देता है।
इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हेलो। Yes. हाँ, जब आप खाना पकाते हो, व्हेन यू आर कुकिंग फूड, व्हाट आई सेड, वैसे आप पकाते हो नहीं, मम्मा पकाती है, तो हम जनरली क्या करते हैं ना, नमक डाल, सब्जी जो भी पकाते हैं तो साथ में नमक डालते हैं। इससे क्या होता है ना, आप उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हो। तो मान लो, अगर पहले, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर वो पहले अगर 30-40 डिग्री पे अगर बॉयल हो रहा था, अब वो नेक्स्ट कुछ बढ़ गया होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब कि जो उसका इसी बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं ना, कि वो नमक को बाद में मिलाओगे तो खाना आपका जल्दी पकेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आई, हाँ या ना? Yes, sir. हम्म। तो ये जो आइस है ये 0 डिग्री पे है। अच्छा, ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन टेम्परेचर रिमेन सेम, डू यू नो? ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन टेम्परेचर रिमेन सेम। मान लो आइस है, मान लो आइस है, जो मेल्टिंग आइस है, जो मेल्टेड आइस है, उसका पानी, उसका टेम्परेचर और आइस का टेम्परेचर सेम रहेगा, बट इफेक्टिव ज्यादा कौन होगा? वाटर होगा, ड्यू टू हैविंग सरफेस एरिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. 100 डिग्री बॉइल्ड वाटर और वही 100 डिग्री का इवापोरेशन, मतलब इवापोरेटेड पोर्शन, वेपर, ज्यादा खतरनाक कौन सा होगा अनुश्री? क्या सर? मुझको लग रहा है क्या सर? नहीं सर, आपने क्या पूछा वो पूछ रहा हूँ। ऐसा मत करो बेटा। मैंने तो पूछा, मैं बताऊं? वेट, मैंने पूछा, आई आस्क्ड दैट कि ड्यूरिंग इवापोरेशन, फॉर एग्जांपल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, तो एक बार आप एक उसी उंगली से आप 100 डिग्री वाले वाटर को टच करोगे और उसी दौरान वेपराइज भी होगा, अब वेपर को भी टच करोगे, तो ज्यादा हेल्दी कौन सा होगा? सर ज्यादा डेंजरस तो वो जो पानी जो गर्म है वो होगा ना, उसको टच करना। वेपर को अगर टच करने में तो सर Sir, steam. सर स्टीम स्टीम होगा। होगा, latent heat to vaporization Sir, latent heat होता है उसमें इसलिए सर ज्यादा सरफेस of vaporization। सरफेस फिनोमेना की बात करते हैं, वो तो अलग है। ठीक है? Sir, latent heat of vaporization नहीं होगा, खाली latent heat होगा। लेटेंट हीट जो बोलते हैं ना, लेटेंट का मतलब जो हिडन हीट होती है, हम उसकी बात करते हैं। वो तो एक्सपेंड करेगा, तो जो आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट वो बढ़ जाएगा। अब जो लिक्विड पे डाला तो उसमें आपका कम थी, सर्टेन एरिया पे होता है, लेकिन इसमें ना इसका जो एक्सपेंशन ज्यादा होती है, तो ज्यादा एरिया पे कांटेक्ट करेगा, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। तो इस पे कन्वर्ट किस पे होगा? वाटर पे होगा, कि वाटर भी किस पे रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब आप फर्दर आप इस पे एनर्जी अप्लाई करेंगे, मतलब एनर्जी का मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन यू अप्लाई, ये क्या होगा बताइए? वेपराइज होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हेलो। जब आप इसको आप हीट अप्लाई करोगे तो किसमें होगा? ये वेपराइज हो जाएगा। ऑन हीटिंग इट वेपराइज। कोई दिक्कत? अरे लिखा गया वेपराइज। कोई दिक्कत बताइए? इसका रिवर्स भी ट्रू है कि water at 0 degree will be converted into ice on freezing. Clear? अरे बोलो। Yes.
कुछ पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं इसके बारे में किसी टेम्परेचर ऑल्टरनेशन ऑफ टेम्परेचर के अंदर में। इसमें हम लोग पहला बात करेंगे किसके बारे में, मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको, एनीवन? सर जब सर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को कहते हैं। एनीवन एल्स? सर मैं नहीं सर, मैं नहीं बताऊंगा। एनीवन? सोचो। टेम्परेचर में राइज होने की वजह से जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको व्हाट अबाउट एल्स? मेल्टिंग। बदमाश? अरे बोलो। तानवी, स्वरा, सुदेश? Do you want to remain keep silent? Or you want to speak? चलो कोई नहीं। It is a process. It is a process by which, or we can say due to, आपको अलग अलग जगह में by which या due to which या by virtue of it मतलब सेम है, ठीक है ना, मतलब सेम है। The process by which a solid converted into liquid. Clear? हेलो? यस यस सर। ऐसा होगा मुझे कब? डाउट है। वेट, ऐसा होगा कब? When we supply heat, it means it will absorb energy. By absorbing heat energy in the form of heat. Are you able to understand? Is called what we call them? Melting or fusion. Is it clear to everyone? What is your dad? Go for it. नहीं सर, वो क्लियर हो गया। मेरे को वही पूछना था कि टेम्परेचर का इसमें आएगा कि कुछ टेम्परेचर रिलेटेड है। देखिए मैडम जी, जो आपके पास टेम्परेचर होता है, क्या होता है? टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा कब? When we apply heat or we withdraw heat. ये कुछ इस तरीके से होता है, ये कंटेनर है, हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो हीट हमने दिया तो प्लस क्यू, हीट को हम लोग क्यू से लिखते हैं, अभी नहीं क्लास 11th में, अभी नहीं क्लास 11th में। फिर प्लस क्यू बात करेंगे, जब निकालेंगे तो बात करेंगे माइनस क्यू। क्लियर? अगर हमें इसका टेम्परेचर घटाना हो तो हमें हीट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। मतलब बर्नर ऑन करके हम उसको हीट करेंगे या कैंडल से जलाएंगे, कैंडल मार्क। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये जो है, अब हमें चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर कम हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमने हीट दिया, टू डिक्रीज टेम्परेचर वी नीड टू विथड्रॉ हीट। क्लियर है? इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। हीट के देने न देने से टेम्परेचर में फर्क पड़ता है। टेम्परेचर अपने आप कुछ नहीं है। टेम्परेचर क्या है? इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, दैट वी कॉल एज टेम्परेचर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? थैंक यू। ये सब आएगा क्लास 12 11th में आएगा, थर्मोडायनामिक्स, बहुत ही वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। माय सेपरेट चैप्टर इन केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स। इज इट क्लियर? सर एग्जाम मतलब यहाँ पेपर होने वाला है, उसके अंदर मोल वगैरह इसके क्वेश्चन भी आएंगे क्या? मैंने पढ़ाया है मोल। हाँ सर। पढ़ाया तो आएगा। ओके सर। सॉलिडिफिकेशन, जो जो पढ़ाया हूँ सब आएगा। डोंट हेजिटेट टू आंसर योर क्वेश्चन,
क्लियर? इसमें क्या है इसका उल्टा, क्या है इसका उल्टा, द प्रोसेस by which liquid is converted into gas, क्या? हेलो गाइस, anyone? Liquid changes into gas. सॉलिड। सब खामोश बैठे हैं, बस खामोश, और सबसे खरगोश भी होता है। आप समझ रहे क्या? चेंजेस इनटू सॉलिड। अच्छा, यहाँ पर क्या एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा? सर लूज करेगा। पक्का? सर पक्का। हाँ पक्का ना, डर क्यों रहा है? मैं खा तो ना रहा हूँ। सर पक्का बोला मैं। हाँ पक्का है, पक्का तूने आधा आधा वाला पक्का बोला। by which a liquid changes into solid state by giving out or losing, by giving out और losing, बोलते हैं ना यू आर लूजर, ऐसे दिखाते हैं। कितना आप लोगों को मजा आता है ना ये वाला। गिविंग आउट और लूजिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड, अरे क्या बोलेंगे बताओ? हेलो गाइस, सर फ्रीजिंग। अरे आप तो बोलते हो, मुंह तो खोलो। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, यस और नो? solidification, are you able to understand? Hello, Yes, sir. should I move to next? No, sir. Do it fast. Yes. Everyone? नेक्स्ट लिखिएगा स्टार डाल करके MPP, डू यू नो? मेल्टिंग पॉइंट। हाँ सर पता है। सर मेल्टिंग पॉइंट एक पॉइंट होता है जहाँ पे एक सब्सटेंस मेल्ट होता है और फ्यूजन एक प्रोसेस होती है उसकी। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट कब होता है ना, जब सब्सटेंस के बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? ब्रेक होने लगते हैं। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग ये पूरा इंटायर प्रोसेस है, क्या टेम्परेचर रिमेन सेम और चेंजेस? Sir remains. हाँ, once again I am asking a question. If you have for example iron है, उसका it has melting point of 1000 degree Celsius for example, not is the exact value. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आयरन को टच करना और उसी का 100 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टेड फॉर्म को टच करना, ज्यादा मजेदार वाला कौन सा होगा? Sir melted form. वो ज्यादा अच्छा लगेगा ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा? Sir melted form. मेल्टेड फॉर्म। मेल्टेड, ड्यू टू Latent. मोर लैटेंट ही। मीन्स वही वाला बात, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड सिद्धेश? यस सर। सिद्धेश के साथ एक इशू क्या है ना, वो आंख खोल के देखते रहता, कुछ बोलता ही नहीं है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा मुस्कुराता है, कुछ बोलता ही नहीं। हाँ सिद्धेश, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में लिखिएगा द कांस्टेंट टेम्परेचर। TMP का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर at which solid changes into liquid state, liquid
state by giving energy or by absorbing energy? by absorbing energy. मतलब मेल्ट करने के लिए ऑब्वियसली हमें हीट देना पड़ेगा, एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। यहाँ पे हम आपको एट द रेट नहीं लिखना है, आपको एट लिखना है, एट 1 atm प्रेशर। 1 atm का मतलब क्या है? 10⁵ पास्कल और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हेलो गाइस। सर लेकिन 1.01 भी मल्टीप्लाई करेंगे ना 10⁵ से, तब जाके वो 1 atm का वैल्यू हो। हाँ सर। दैट इज नियरली इक्वल 1.01 या 1। अब जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना तो 1.01 को आप ऐसा नेग्लेक्ट करेंगे ना, आप दोबारा यूज करना भूल जाएंगे, ठीक है? एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 1.01 जो आप कह रहे हो 10⁵ पास्कल, बट एग्जैक्ट वैल्यू मतलब जो हम लोग बात कैलकुलेशन पे लेते हैं तो 10⁵ को लेते हैं, बाकी 1 को तो गए काम से। मार्टा। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। Yes. हम तो ये बोलते हैं जब तो तुम ब्रेकफास्ट करो हम घूम के आ रहे हैं, यस और नो? is called its MPT। अरे बोल भाई, समझ में आया क्या? हाँ हेलो। Yes, sir. नेक्स्ट है BPT, तो बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? BPT। वैसे BPT का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो क्लास मतलब क्लास 12 के बाद की जाती है या ग्रेजुएशन, ठीक है? वैसे यहाँ पर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। मैंने बॉइलिंग पॉइंट क्यों लिखा? हाँ हाँ, इसमें लिखेगा द टेम्परेचर एट विच, इसमें भी वो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, एट विच वेपर प्रेशर, जो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? हेलो गाइस। Yes, sir. इक्वल टू क्या बोला मैंने? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या उसका सराउंडिंग प्रेशर। और हर सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होती है, जैसे अणु की अलग तो अर्णव की अलग, सबकी अलग अलग। शक्ल बनाने की जरूरत नहीं, मैं सबका नाम लेता हूँ। हेलो। हाँ It's called its BPT, means boiling point. Moving to next. Everyone done? सर, 1 मिनट। Do it fast. हो गया सर। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि what happens during melting or freezing, can you explain? यस सर। लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा ठीक ठाक कम से कम 3-4 लाइन लिखना पड़ेगा। लास्ट टाइम के तेरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। मान लो ये जो आने वाला एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा, तो गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है? क्या होता है? विल यू एक्सप्लेन मी? ड्यूरिंग मेल्टिंग क्या होता है? ड्यूरिंग मेल्टिंग व्हेन वी सप्लाई हीट टू दैट सब्सटेंस, देन व्हाट विल हैपन?
सर सॉलिड लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। कैसे? उसको जब एनर्जी मिलती है तो फिर वो जो अपना इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, तो वो उसको ब्रेक करके लिक्विड फॉर्म में आ जाता नहीं, जब when we apply heat, when we supply heat in the form of, obviously heat क्या form of energy है, it gains energy. Gains energy कौन सी? kinetic energy. So these kinetic energy in between the particles ये बढ़ जाएगी, पहले भी कुछ ना कुछ होगी लेकिन पहले कम होगी। अब हमने हीट दिया, उसको हमने क्या मतलब एक करके छेड़ दिया। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि हनी भी होता है ना, उसका बिहाइव पे आपने उसको छेड़ दिया, अब उसके बाद जो होता है वैसे ही कुछ कहानी यहाँ पर भी होती है। यस और नो? तो सेम थिंग्स आर हैपनिंग हियर। एंड इस तरीके से क्या होता है, जो उसका आईएमएफ होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको ब्रेकअप करता है, उसको ओवरकम करके ये वाइब्रेट करना शुरू करता है। और वाइब्रेट करते करते क्या होता है, जब आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है तो एक जगह से साथ दूसरी जगह ट्रेवल भी करता है। तो ड्यूरिंग ये जो पार्टिकल्स अलग अलग होने लगते हैं, इसी अलग अलग होने के दौरान ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इनको लगते हैं शॉर्ट में FPT। क्लियर? अरे क्या लिखते हैं? FPT। इसमें लिखिएगा द कांस्टेंट टेम्परेचर, द कांस्टेंट temperature at which a solid होगा या ये लिक्विड होगा? at which liquid changes into solid state। इसके लिए एनर्जी देना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा? अनुज जी बताइए। तानवी कुछ आप बोले, आज क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? कुछ आज क्लास आपने कुछ नहीं बोला। फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। जानवी क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। जानवी टेम्परेचर कैसे डिक्रीज करना पड़ेगा? हाउ विल बी डिक्रीज टेम्परेचर? एनर्जी निकाल, क्या करेंगे? एनर्जी निकाल, हीट निकालेंगे ना। वी विल रिमूव हीट, ठीक है ना? हाँ, into solid by giving out heat energy। clear? at 1 ATM, वो पैसे वाला ATM नहीं। श्रेयांश बात समझ में आ रही है? यस सर। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना है आपको कि जो मेल्टिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? टेम्परेचर के सेंस में, इन सेंस ऑफ टेम्परेचर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये क्या है? फेज कन्वर्जन। So what I said, during phase conversion temperature remains same। Are you able to understand? तो नोट डाल के एक पॉइंट लिखेगा, नोट डाल के एक पॉइंट लिखेगा, MPT means melting point of ice is equal to
freezing point FPT of water. आइस का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता, आइस ऑलरेडी फ्रीज है, वो क्या फ्रीज होगा? आइस की वैल्यू कितनी होती है हर्षवर्धन? 0 डिग्री सेल्सियस, बट इन द फॉर्म ऑफ केल्विन इट इज 273.16 Kelvin. Are you able to understand or no? Hello. Yes, sir. Yes, sir. उसी तरीके से आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस और नो? अरे बोलो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन दैट लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा लिक्विड टू गैस। ये पहले वाले के अंदर मतलब बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ऑन लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? इसको हीट देना पड़ेगा, मीन्स इसको हीट करना पड़ेगा अप टू सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन कांस्टेंट टेम्परेचर। हर लिक्विड, हर सॉल्वेंट के लिए अलग स्पेसिफिक क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जब बॉइल करने के बाद तभी तो वेपर फेज में जाएगा, और वेपर फेज में जाने के बाद ही तो वेपराइज होगा। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो। तो वी कैन से, आप लोग लिखने में मत रहो, समझने की कोशिश करो। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? आ रही है Yes, सर। sir. Liquid can be converted into gas by heating them. क्लियर? हीट करने पर ही इसको हम क्या कर सकते हैं? गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गैस को अगर हम चाहते हैं कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? कूलिंग करना पड़ेगा, यस और नो? मतलब हमें हीट निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। जो आपके पास वाटर है, क्या है? वाटर एट 1 atm प्रेशर, एट 1 atm प्रेशर चेंज इनटू वेपर। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर टेम्परेचर सेम रहेगा, अलग अलग होगा। इसी वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीम बोलते हैं, यस और नो? हेलो। एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा कैसे कब होगा? बाई एब्जॉर्बिंग हीट। मतलब हमें हीट देना पड़ेगा और वो सिस्टम क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इज इट क्लियर? फॉर क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हेलो। बाई एब्जॉर्बिंग हीट। कोई दिक्कत? स्टेटल के पॉइंट लिखेगा दिस वेपर और वी कैन से स्टीम। ये जो स्टीम है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। उसके लिए हमें क्या करना बताइए? हमें एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वेपर के पास, स्टीम के पास एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड ऑफ सेम टेम्परेचर। बस समझ में आ रही है? जिसको आप लोग बोल रहे हो लेटेंट हीट बात कर रहे हो। अरे बोलो ना। हाँ सर। जिसकी वजह से एनर्जी देना पड़ेगा। देख, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड हीट। उसी तरीके से स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट निकालना पड़ेगा, तभी तो वो लिक्विड में आएगा। बात समझ में आ रही है? इसमें लिखिएगा बाई गिविंग आउट हीट एनर्जी।
या ऐसा लिख सकते हैं गिविंग हीट एनर्जी। बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। इसी के सर लिए एक कुछ बार पीछे खास, जाएंगे। इसी के लिए कुछ खास पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें मेजर हो गया। और वेपराइजेशन। बॉइलिंग और वेपराइजेशन। जो हमने पिछले में लिख लिया था वहां पे नहीं, यहाँ पता होना चाहिए। बॉइलिंग बॉइलिंग और वेपराइजेशन। कृपया ऐसे न बैठे। Could you explain? Hello. Could you explain what is boiling or vaporization? So the process by which liquid turns into gas by absorbing heat energy. Yes, that's fine. Absolutely fine. Anyone will explain? Tanvi, Janvi, Anusari, Saneha. When we give heat to any liquid, it changes from liquid state to gaseous state. Anyone? सब सबके समझ, जैसे मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ फटाफट सब लिखने की तैयारी कर रही है। ऐसे कैसे चलेगा? माइंड इज ए थिंग, माइंड इज अ मैटर। जितना यूटिलाइज करोगे उतना ही शार्प होगा। और गेटिंग माय पॉइंट? यूटिलाइज नहीं करोगे उतना ही ब्लंट हो जाएगा। जस्ट लाइक ए नाइफ। नाइफ को यूज करो तो शार्प होगा। अच्छा, अच्छे क्वालिटी वाला नाइफ, लोकल वाला नहीं। लोकल वाला दो दिन 3 दिन में होता है ना, जो शार्पनेस खत्म हो जाती है। अच्छा वाला नाइफ लोगे ना, जितना शार्प करोगे उतनी अच्छी चलेगी। बिठा के रखोगे तो फिर वो कुछ दिन बाद ब्लंट हो जाएगा, फिर काम ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? एज यू हैव न्यूरॉन्स ना, तो थ्रू न्यूरॉन्स जितना कंडक्शन होगा उतना ही वो न्यूरॉन शार्प होगा, उतना ही आपका मेमोरी शार्प होगा। अगर आप न्यूरॉन्स बेसिकली जो ब्रेन मैटर है, ब्रेन के जो मैटर है, जब तो आप क्लास 10 में पहुंचोगे, क्लास 11 में पहुंचोगे, अगर बायोलॉजी स्ट्रीम में जाएंगे तो समझ में आएगा ब्रेन के अंदर क्या होता है। कुछ अंदर वो ब्रेन के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, उसको लोग बोलते हैं ब्रेन मैटर। ये 2 टाइप का होता है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। बात समझ में आ रही है? आपका ब्रेन कितना शार्प है, इट डिपेंड्स कि आप कितना इसको यूटिलाइज करते हैं। तो जितना बार कंडक्शन होगा उस न्यूरॉन्स के थ्रू, उतना ही ज्यादा मेमोरी शार्प होगी। माइंड आपका जो ब्रेन उतना शार्प होगा, उतनी अच्छी मेमोरी होगी आपकी। मेमोरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। हाँ, मैंने क्या बोला? बॉइलिंग और वेपराइजेशन। तो इसमें लिखेगा द प्रोसेस बाय which liquid turns into gas. Clear? Liquid turns into gas by absorbing heat. Absorbing heat energy. Clear?
is called boiling. जो मैंने बताया ना अभी कुछ देर पहले boiling point, that is the best definition. The temperature at which उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर becomes or equals to the atmospheric या उस सराउंडिंग का प्रेशर, that is the boiling point. समझ में आ रही है? जैसे आप लोग खाना कुकर में बनाते हैं तो कुकर में खाना जल्दी बनता है, जो प्रेशर है ना वो बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है गैस के अंदर, कुकर के अंदर, और इन ओपन वेसल ये जल्दी नहीं हो पाती है, इसीलिए क्या होता है, टाइम लगता है। तो ओपन वेसल में खाना बनाने में टाइम लगता है और कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? हेलो हाँ हेलो, हाँ समझ में आई क्या? समझ में आई हाँ। सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए दूसरा नंबर दे करके।